Hello my dear students, welcome to your science class. This is part 5 and this will be the last part of this chapter reproduction in plants, and in this particular video we will see what are the difference between unisexual and bisexual flowers. Second one, what is the difference between self pollination and cross pollination, and the last topic will be covered in this particular video is seed dispersal. Okay, so let's start. Unisexual flower means the flower which are having only male or female reproductive parts are known as unisexual flower, whereas the flower which are having both parts like stamens male part and pistil, that is female part, are known as bisexual flowers. The unisexual flowers are also known as incomplete flower because they are having either male part or female part, and bisexual flowers are known as complete flower because they are having stamen as well as pistil both. Okay, so examples of unisexual flowers are watermelon, cucumber, papaya, and bisexual flowers are hibiscus, wild roses. Okay, so these are the differences between unisexual and bisexual flower. So let's move towards the difference between self pollination and cross pollination. I have already discussed it separately, but see here what are the basic difference. If the pollen grains from a flower reach the stigma of the same flower or another flower on the same plant is called self pollination. Here we need to understand that stigma of the same flower or another flower on the same plant. Here plant is not changing, flower is changing, but plant is not changing. So here cross pollination, when pollen grains from a flower reach the stigma of a flower of another plant of the same kind, it is called cross pollination. Same kind means if it is mango plant then another mango. Okay, it's not like बबूल plant you are talking. तो पेड़ चेंज होगा, फ्लावर चेंज होगा, लेकिन उसकी वैरायटी नहीं चेंज होगी. ओके, इस बात का ध्यान रखना. सेम काइंड. Self pollination can occur only in bisexual flowers and cross pollination can occur both in unisexual and bisexual flower. क्यों हम बात कर रहे हैं केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है? क्योंकि अगर सेम प्लांट की बात करते हैं, सेम फ्लावर की बात करते हैं, अगर यूनिसेक्सुअल है, सपोज कोई मेल पार्ट ही है, स्टेमन है और पिस्टिल नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों पार्ट्स का होना ज़रूरी है पॉलिनेशन के लिए. तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन नहीं. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो सकता है कि अगर दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है, मेल और फीमेल दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी जा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जा सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी. तो आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट डिस्पर्सल ऑफ सीड और सीड डिस्पर्सल. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट टू द डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. सीड का बिखरना, उसका फैलाव होना. ओके, तो जहाँ सीड फ्रूट्स के साथ है, अपने पेरेंट प्लांट के साथ है, मैच्योर होने के बाद वो डिस्पर्स हो, फैले, तो इसे हम जानते हैं सीड डिस्पर्सल. तो देखते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है. ओके, सो सीड डिस्पर्सर अलाउज ग्रोथ ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट इन डिफरेंट रीजन. जब वो फैलते हैं, जब वो बिखरते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदा हो जाता है कि वो पौधा दूर दूर तक ग्रो करने के चांसेस रखता है. ओके, दिस इज़ हेल्पफुल बिकॉज इट मिनिमाइजेज द कंपटीशन फॉर फूड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स एमंग द प्लांट ऑफ द सेम काइंड इन द सेम एरिया. जैसे अगर 1 किलोमीटर के रेंज में 10 पौधे हैं, तो उनका कंपटीशन एक दूसरे से कम रहेगा. सपोज़ 1 लाख पौधे हो गए 1 किलोमीटर के रेंज में, तो अगर सेम वैरायटी है तो उनकी लगभग हाइट भी सेम होगी, उनकी रिक्वायरमेंट भी सेम होगी. तो इस कंडीशन में आपस में वो compete करेंगे, और जब कंपटीशन होगा तो उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होगा, उनके प्रोडक्टिविटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो जब डिस्पर्सल होता है तो ये सब कंपटीशन जो होता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है.
कम से कम हो जाता है। एंड इट आल्सो अलाउज देम टू ग्रो इन डिफरेंट हैबिटाट्स। जब वो फैलते हैं तो जैसे ही एरिया बदलता है कुछ चेंजेस आते हैं। अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए तो ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो इससे ये भी फ़ायदा होता है कि सीड्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो दूसरे हैबिटाट्स में ग्रो कर सकें। तो ये बेनिफिट है। तो कैसे कैसे सीड डिस्पर्सल होता है, व्हाट आर द एजेंट्स? तो बाय विंड, बाय वाटर। तो ये सब चीज़ें हैं कि इनकी मदद से जो है वो डिस्पर्सल होता है। तो विंड की मदद से कौन होता है? ड्रम स्टिक, सहजन आप जानते होंगे, मैपल, क्योंकि इनके सीड्स जो होते हैं विंग्ड सीड होते हैं, इनके सीड में पंख लगे होते हैं। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो ड्रम स्टिक का सीड है ये आपको यहाँ पे आपको यहाँ पंख दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे भी। तो ये विंग जो हैं ये इनको क्या कर मदद करते हैं? वाटर में सॉरी एयर में इसको उड़ने में ये मदद करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने में ये मदद करते हैं। दूसरे ये हेयर्स होते हैं। तो हेयर फ्रूट, ये हेयरी फ्रूट है जो कि सनफ्लावर में पाया जाता है, और सीड जो है ये मदार या ऑक बोलते हैं इसको। तो इनमें जो फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ये जो हैं हेयरी हैं। तो इसकी वजह से ये लाइट वेट हो जाते हैं और आसानी से एयर की मदद से, विंड की मदद से ये एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। तो बाय विंड हो देख लिया आपने। बाय वाटर सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आप कोकोनट का लें तो जब ये अपनी पूरे कवर के साथ होता है और पानी में इसको ये जब गिरता है तो ये हल्का होता है। हल्के होने की वजह से ये आसानी से जो होता है वो फ्लोट करता है, तैरता है, और एक जगह से दूसरी जगह पे ये फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। ओके। एक और तरीका है बाय एनिमल्स। जैसे कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि जिन पे हुक या स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जेंथियम इज़ वेरी कॉमन। जैसे ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं, तो उनमें ये जेंथियम बड़े आसानी से चिपक जाता है। जैसे भेड़ बकरियां जहाँ कहीं ग्रेस करने जाते हैं, चारा खाने जाती हैं, और ये उनके बॉडी पार्ट्स पे चिपक जाता है, और वो फिर जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो कहीं जाके ये सीड गिर जाता है, और ये नेचुरल तरीके से अननोइंगली दे आर स्प्रेडिंग। तो बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स आल्सो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस। ओके। सो दीज आर द। और अनदर जो तरीका है फूड बर्स्ट, जैसे फ्रूट राइप होने के बाद जब वो बर्स्ट करता है, फूटता है, तो उस कंडीशन में भी एक पर्टिकुलर एरिया में सीड जो होते हैं उसके डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इसके लिए कैस्टर या बाल्सम को देखें तो ये इसका कॉमन एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमने कवर कर लिया कि सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, उसका क्या बेनिफिट है, और उसके एजेंट्स क्या क्या हैं। तो आप बोल सकते हैं कि बाय वाटर, बाय विंड, बाय एनिमल्स, बाय फूड बर्स्ट। ये थोड़ा कॉमन नहीं है कुछ ही जगहों पे, लेकिन वो चीज़ें जो आपने देखा। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि कैसा स्ट्रक्चर है सीड का, कितना वेट है, हेयर्स हैं कि विदाउट हेयर हैं, विंग्ड सीड हैं कि विदाउट विंग्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओके। सो क्या करना है आपको? डायग्राम बनाना है, नोट्स भी बनाने हैं, और आपका एग्ज़ाम आ गया है, आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये रिसोर्सेज हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप यू विल डू वेल। जय हिंद, जय भारत।